out of college since 2001, and I vowed that I'll never go back to the college. But I now go to colleges for different reasons. So thank you for having me here. I'll try to make this interesting for you. Try to share some knowledge, whatever I've learned, whatever I've experienced. I'll try to share my realizations. But before I start, I seek blessings from all the August people over here, senior educators. You are all very senior to me. So please bless me so that I am able to share this message with you properly. Although I am junior to you, but the message is pristine, it is very old, it is coming from a great tradition, so I hope it will help all of you. So our language can be English only, or how do we want to keep it? Mix of both is okay, okay. Okay, so what happened? Which, can you tell me how to operate this? So, click on it. Okay, so my prayers to Srila Prabhupada, whatever I'm going to talk today is going to be based on his teachings here. Yeah, so while I was kind of preparing myself for this talk, I was going through your university website and I found this very interesting statement over there. So Guru Gobind Singh Tricentenary University has the avowed objective of spreading the message of Sri Guru Gobind Singh that the highest service is rendered by spreading knowledge. So this I found to be very, very inspiring. And we are going to talk about Bhagavad Gita also. So Sri Guru Gobind Singh Ji appeared some 450 years back, right? In around 1666. And he gave certain messages and he wanted to spread knowledge. And Gita was spoken even back, right? It was spoken 5,000 years back. So how is it relevant? How is this message of Guru Gobind Singh or Gita relevant for today's time and age? Any suggestions? We would like to keep this interactive, so you can please pitch in. Answer. Who both? Gobind Singh Ji and Gita. No, my question is different. That's right. My question is different. I'm saying, how is this relevant? Something which was taught 450 years back. How is that message relevant for people of this time and age? In the introduction earlier, several problems were highlighted, right? The problems which we are facing in today's world. But is their message relevant? Is their message relevant 5,000 years back, whatever was taught? Any students here? No matter. So ma'am is saying the challenges are same. In other words, you're saying the challenges are same. Okay. Thank you. Yes, sir. Arjun was in the same state. So Arjun was fighting a war. How many of us are right now having a bow and arrow in our hands and fighting a war? Within the different variety of situations. Yes. Kind of yeah, correct. Also kind of making a war. So the hurdle are like wars. But I think that the students over here are very happy lot. They don't have any hurdles, they don't have any problems. Because everybody is happily sitting, nobody is answering. Any responses from the students? What is the relevance of the message of Guru Gobind Singh and Gita in today's time and age? Anybody can answer that question, any student, not the educators here. Gobind is also another name of Krishna. So I think there's a resemblance. What I think also. Okay, let us try to see this through the message. So my question was, is Gita practical or not? And I see the educators are, at least, they have gone through this grind for 20, 25 years. Maybe now you are realizing. But when you were students, you were also realizing this, the hurdles? You are realizing this? Okay. Let's see what Krishna is saying. What is our perspective, why this is practical? Okay. Can somebody read this? Any students can read this? At the back, anybody? If you don't volunteer, I will ask you. I'll point you. Anybody wants to volunteer? Yes, please. Go ahead. What is?
Yes. Hare Krishna Prabhu Namaskar. Mame Vancho Jeev Loke Jeev Bhuta Sanatana Mana Sasthanandriyani Prakriti Sthani Karashyati. Perfect. What is the translation given here? Read the translation, please. Translation: the living entities in this conditioned world are my eternal segmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with six senses, which include the mind. So we were talking about the practical aspects of Gita. Why is this relevant? So Krishna is giving, maybe some of us are already knowing Krishna, some of us are devotees of Krishna, some of us may not believe in Krishna. But there is one person, 5,000 years back, he is saying, Mame Vangsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. All the living entities are my part and parcel. They are my parts. That's what he's saying. So basically, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम अपने पेरेंट्स का पार्ट हैं एक तरीके से. तो अगर हमारे पेरेंट्स कोई हमको मैसेज देते हैं, दैट इज फॉर अवर वेलबींग. इज देयर अ केस जहां पर पेरेंट्स कोई मैसेज दे रहे हैं हमारे वेलबींग के लिए नहीं है? अधिकांश ऐसा नहीं होता. So whatever our parents are telling us, that is for our well-being. So from that logic, we can say that Krishna is saying all of us are his part, and his message for us is given in this Gita. So there is some relevance in this Gita. Okay, let's move ahead. Now anybody else can read this? कोई और read करना चाहेगा? Anybody like to read? मेरे से सारा मेहनत कराओगे, कोई रीड नहीं करेगा? ओके, आई विल रीड फॉर यू. चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभा. तो कृष्णा, Gita has 700 verses. How many of you know about certain basic details of Gita? When was Gita spoken? I just said that 5,000 years back. How many chapters are there in Gita? How many verses? 700 verses. And how much time Krishna took to narrate Gita? Any idea? 40 minutes, 45 minutes. He narrated Gita in 40 minutes to Arjuna. How old was Krishna and Arjuna when Gita was spoken? Any guesses? 5,000 years old, 50 years old. What do you suggest? 50 years old, how many? Raise of hands. How many believe he was 50 years old or less? Less. Can I see show of hands? How many believe that Krishna and Arjuna were 50 years or less? So Krishna and Arjuna were 100 years old when they spoke this message of Gita. Okay, when they were discussing. So what is the context of Gita? Sir was saying that Arjuna was in a situation of war and we are also facing certain hurdles. What is the context of Gita and why is it relevant for us? Arjuna is one of the Pandavas who were, and they were troubled by Duryodhana and his gang, right? Kurus. They were all cousin brothers. And there were a lot of atrocious things which Kurus were doing on Pandavas, right? So this age of 100 years, many wrong things were done by Kauravas on Pandavas. And the most heinous act which the Kauravas did was to try to disrobe Draupadi. And after that, they were sent to the Pandavas were sent to the jungle for 13 years. And during that period of 13 years, they were always contemplating that I want to take revenge. We want to take revenge from Kurus, right? So when the Mahabharata war was organized, Pandavas were fully aware that if we are able to come to this war, we will definitely kill the Kurus and that will be the cause of my happiness. That's how we will be happy. They made a decision in their mind. But when Arjuna was on the battlefield, when they were fighting, he requested Krishna, please take my chariot in the middle of the battleground. And I want to see who all have come to do this fight. And then he sees his grandfather, he sees his spiritual master, his teachers. He sees all of them. And then suddenly his
thinking changed. Earlier he was thinking that I will be happy by killing these people in the war. Then he started thinking that I will be happy by not killing these people in the war. So then he said to Krishna that Krishna, I can't fight. And he gave hundreds of reasons, very nice logical reasons he gives in Gita that why he should not be fighting. And they were all very logical reasons. But ultimately he takes shelter of Krishna and says that I am still confused, although in my mind I have a lot of good reasons for not fighting, but still I am confused. I don't know what should I do. And then he takes shelter of Krishna. So during that discourse, Krishna says that there are 4 types of people who are coming to him. What are these 4 categories of people? They are Arth. So, O best among the Bharatas, 4 kind of pious men begin to render devotional service unto me. The distressed. So, Arth means those who are having some kind of a problem. Those who are distressed. The desirer of wealth, Artharthi. Then the inquisitive. Those who have some questions in their mind. And he who is searching for knowledge of the absolute. Those who know that Krishna is God. Okay? So now in this assembly, in which category do you think you fit? All of you are students, right? Supposedly inquisitive people, right? But actually these days students, हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी, but students भी अर्थार्थी हैं, right? अर्थार्थी क्या मतलब होता है? Those who are desirous of wealth. क्या अर्थार्थी हैं? हम चूज करते हैं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होगा, कौन सी डिग्री मेरे को अच्छी सैलरी दिलवाएगी. तो ये सारे के सारे लोग जो भगवान के पास जाते हैं, कृष्णा के पास जाते हैं, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. अगर हमें ये नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे. इसलिए मैं आपसे पूछा था कि डू यू थिंक कि वी हैव सम प्रॉब्लम और वी हैव सम काइंड ऑफ अ वॉर. हमारे को ये चीज ध्यान से सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है. तो ये 4 तरीके के लोग जाते हैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए. किसी को पैसा चाहिए, किसी को अपनी तकलीफें दूर करनी है, किसी को कुछ ज्ञान चाहिए और कोई ऑलरेडी नॉलेजेबल है. अब हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं. तो बहरहाल हम ये प्रयास करते हैं समझने का कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम्स आजकल ऐसी हैं जो हमारे साथ हो रही हैं. ओके ओके तो कुछ ये स्लाइड हैं, यू कैन हैव अ लुक. देख रहे हैं हम अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं. अभी नागपुर का लेटेस्ट था, राइट्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, यूक्रेन का और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है. ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, बट ये काफी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, राइट. ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं. अगर हम इनके बीच में हैं तो हमें इफेक्ट करती हैं, अदरवाइज सिर्फ एकेडमिक नॉलेज है, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. स्पेशली भारत में अभी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों का, बट कई सारी और भी समस्याएं हैं. ओके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिविजुअल हैं या सोसाइटल लेवल पे हैं हमारे सामने. मैं आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमारे पास भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें पहले समझना पड़ेगा. ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल डिवोर्सेस या रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती हैं, ड्रग्स का प्रॉब्लम है ना, ड्रग एडिक्शन चल रही है, रेप है, सुसाइड है. तो इस तरीके की ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, राइट. आप देखिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे समाज में बढ़ रही है. वायलेंस बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. अब आप मुझे इसमें से देख के बताइए कि क्या इनमें से कोई चीज ऐसी है जो हमें हिट करती है. आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है. जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक खतरा रहता है कि उनका जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना. ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है क्योंकि स्ट्रेस होता है तो लोग इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं ताकि हम भूल जाएं स्ट्रेस को. ठीक है, करप्शन है ही, डिवोर्सेस है ना, ये सारी चीजें, मेंटल स्ट्रेस, ये सब बढ़ रहा है. अब लेट मी गो बैक. या ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ये सब हमको पता है. अब ये समझना है हमको कि हमारी लाइफ में क्या चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं हमको.
मैं थोड़ा सा आपको अपना एग्जाम्पल शेयर कर सकता हूँ, या हमारी स्टोरी, हम सबकी जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हमारी स्टोरी क्या है, अगर आप इस स्लाइड पे देखेंगे तो ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू दिस स्टोरी। 1 मिनट लगा के आप इसको देख सकते हैं एंड यू विल फिगर आउट कि दिस इज द स्टोरी विच वी ऑल हैव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, आपकी तरह कॉलेज में था, विच इज इन ईयर 1997 व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉलेज। उस साल बोर्ड के एग्जाम से पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस विच आई वाज हैविंग कि मेरे को कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में जाना है। पहला रीजन ये था अच्छे कॉलेज में जाने का कि मेरे सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स वहां पे जाएंगे, तो आई शुड नॉट मिस आउट। बट धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि कॉलेज में जाना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि मेरे अच्छे फ्रेंड्स वहां पे पहुंचेंगे, इसलिए भी जरूरी है कि मुझे आगे कुछ पैसा कमाना होगा, मुझे अच्छी डिग्री चाहिए होगी, मुझे अच्छी पढ़ाई चाहिए होगी, जिसके बेसिस पे मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, और अच्छा जॉब मिलेगा तो फिर मैं खुश होऊंगा। तो पढ़ाई, पहले डिग्री, फिर जॉब। जब जॉब के बारे में, जब पढ़ाई कर ली, अच्छी डिग्री मिल गई, आई एम अ सीए बाय एजुकेशन, जब सीए कर लिया तो उसके बाद सडनली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज फॉर मी। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर मी वाज कि वेयर डू आई फाइंड अ गुड जॉब। और उस जमाने में सीए बहुत कम होते थे, ज्यादा नहीं होते थे, अब तो और बढ़ गए हैं। एंड आई वाज द फर्स्ट अटेम्प्टर। फर्स्ट अटेम्प्टर का मतलब है कि पहली बार में ही जो क्लियर कर ले सीए, तो उसका थोड़ा सा डिमांड ज्यादा होता है सीए के प्रोफेशन में। तो मेरा प्रॉब्लम हो गया कि मुझे जॉब चाहिए। देन आई गॉट जॉब इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इटसेल्फ। वहां पर आई वाज मैनेजिंग अ फंक्शन कॉल्ड 25 CA, बेसिकली प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट आई वाज मैनेजिंग। बट जब मैं उस जॉब में गया, पहली जॉब में गया, तो पहले दिन आई वाज हैप्पी, बट द नेक्स्ट डे आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज आई रियलाइज कि यार ये यहाँ पर तो मेरी कोई ग्रोथ होगी नहीं, यहाँ पर तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर पाऊंगा, बहुत कम पैसे मिलेंगे। देन आई वाज इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस कि मुझे कुछ बेटर जॉब चाहिए। एंड देन आई वेंट इनटू LG इलेक्ट्रॉनिक्स, देन आई मूव्ड इनटू नोकिया, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चलता रहा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो गई मेरी। आप इस साइकिल में देखोगे तो यही हो रहा है हम सबके साथ में। हम सभी लोगों को ये स्ट्रेस होता है कि अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट? जॉब अच्छी मिल जाती है, उसके बाद देन वी डिजायर टू गेट अ गुड हाउस, गुड स्पाउस, अच्छे बच्चे, और बहुत सारी चीजें, अच्छा ट्रैवल, फॉरेन ट्रिप, कार, ये सारी चीजें हम लोग डिजायर करते रहते हैं। वी आर ऑलवेज एस्पायरिंग फॉर दीज थिंग्स। अब होता क्या है इस दौड़ में, हमारे साथ क्या होता है, जैसे यहाँ पर आई डोंट नो हाउ मेनी आर सिटिंग हियर, सम 400-500 पीपल मे बी सिटिंग हियर। हर कोई एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता। When I was doing my CA, I was in the company of certain students who were 10 times more intelligent than me, but they couldn't clear, and they were very hardworking also. They couldn't clear, and there were people who were less intelligent than me. They could clear their exams in first go. But everyone, each one of us was desirous that we should reach that destination. We should all clear our exams. And then out of all of those people who cleared that exam, all of us were desirous to get into the best company. But we were not able to do that. All of us were not able to do that. So then the question comes that why are these different results coming our way? Remember, we are discussing on the practical application of Gita. We are discussing about our life, and we are trying to have a connect between the knowledge given in Gita and what is our life about. हम सबके लाइफ में, मेरे ख्याल से आप लोग में से आपका प्लेसमेंट जब फाइनल ईयर में जाते होगे तब होता होगा। आज की डेट में जो नीचे क्लासेस हैं उनको नहीं पता कि वो कहाँ जाके जॉब करेंगे, राइट? तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, किस किस के साथ आती है? हर कोई बच्चा, हर कोई व्यक्ति एस्पायर करता है बेस्ट चीज के लिए। ऑल ऑफ अस एस्पायर टू गो टू द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टू गेट द बेस्ट स्पाउस, to get the best house, but all of us are not going to get there. All of us are not there. So why does that happen, and what does it result for us? होता क्या है उसकी वजह से?
हम सब डिजायर करते हैं बट हमें वो चीज मिलती नहीं है। तो उसका क्या कारण है? अब इसमें एक सवाल छोटा सा मैं करूंगा, अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगे तो आप ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। मैंने बताया कि हम सभी लोग कुछ कुछ डिजायर कर रहे हैं एंड दोज डिजायर्स इज अवर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, इससे मेरे को लगता है कि ये मेरे हैप्पीनेस के लिए जरूरी है, अच्छा जॉब मिलेगा। जैसे अर्जुन को लग रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, पहले लग रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, बाद में उसी अर्जुन को लग रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। बट दोनों ही सिचुएशंस में उसका मोटिवेशन क्या था? हैप्पीनेस, आनंद। सब सिचुएशंस में उसका मोटिवेशन था आनंद, हमें आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो क्यों चाहिए हमको हैप्पीनेस? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये डिजायर करे कि नहीं मुझे तो दुखी रहना अच्छा लगता है, मैं दुखी रहूंगा? इस स्लाइड पे मैंने ये 3 पिक्चर्स रखी हैं, ओके? कोई बता सकता है कि इस हर पिक्चर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं? कोई बता सकता है कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है हर यूनिक पिक्चर में? क्या क्या है? ये समुद्र है और ये नमक है, ये सोना है और ये आग है और ये चिंगारी है, ठीक है? अब मैंने आपको हिंट दिया कि क्या है पिक्चर्स के अंदर। अब आप बताइए कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है? एनीबडी? चिंगारी और आग में क्या सिमिलैरिटी है? दैट्स बोथ फायर, राइट? डिफरेंस क्या है? साइज का फर्क है ना। ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये डिस्ट्रक्टिव है और ये ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इसमें। वेरी नाइस, थैंक यू। इसमें क्या देख रहे हो आप? हाँ, लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड वन स्मॉल गोल्ड। क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी का डिफरेंस है। अगर हम कहें इस पिक्चर में क्या है सिमिलैरिटी? बहुत सारा नमक है। तो मैं यहां पर ये बता रहा हूं आपको कि देयर इज क्वालिटेटिव वननेस बट क्वांटिटेटिव डिफरेंस, ठीक है? मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था यहां पर आपसे ये स्लाइड के पहले, कि हमें हैप्पीनेस क्यों चाहिए, हमें अनहैप्पीनेस क्यों नहीं चाहिए? और यहां मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इन चीजों में क्वालिटेटिव वननेस है और क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा है, बृहद है, बहु है, बहुत बड़ा है, महान है, और एक चीज बहुत छोटी सी है। एक जगह एक मुट्ठी नमक है और एक तरफ एक अथाह सागर है जिसमें कोई कितना नमक है कोई बता नहीं सकता, राइट? तो ऐसे ही हमें हैप्पीनेस क्यों चाहिए? अब थोड़ा सा अगर इस पे डिस्कशन करें, हमें आनंद क्यों चाहिए? हमें जानना पड़ेगा कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम हैं कौन। मैंने एक श्लोक आपको स्टार्टिंग में बताया था, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ममेव अंशो, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे अंश हो। समुद्र में से नमक निकल रहा है, गोल्ड माइन में से गोल्ड निकल रहा है, और आग में से चिंगारी निकल रही है। ये सभी आग का अंश चिंगारी हो गया, समुद्र के नमक का एक अंश नमक हो गया, और गोल्ड माइन में से, सोने की खदान में से निकला हुआ सोने का छोटा सा हिस्सा भी उसका एक पार्ट हो गया, है ना? अब अगर यहां पर हम इसको माने कि ममेव अंशो, हम कृष्ण का अंश हैं, तो क्या हमारे अंदर सिमिलैरिटी होगी? तो बता सकता है? जो कृष्ण की क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर होंगी, बट क्या हम कृष्ण हो जाएंगे? आर वी इक्वल? कितने लोग समझते हैं हम इक्वल हो जाएंगे? कितने लोग सोचते हैं कि हम इक्वल नहीं होंगे? थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड। ओके, तो बहुत क्लियर है ना ये? तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, और हमने कुछ कुछ तरीके बना रखे हैं अपने दिमाग में कि हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा, ठीक है? हैप्पीनेस क्यों चाहिए? क्योंकि हम कृष्ण का अंश हैं, और कृष्ण की क्या परिभाषा है? ब्रह्म संहिता के अंदर कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्ण की डेफिनेशन देते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सब जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा इज द ओरिजिनल इंजीनियर, राइट, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है। तो वो कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद है ना, सर्व कारण कारणम। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज ईश्वर परमा कृष्ण इज कृष्ण
Satchidananda Vigraha. He is manifestation of Sat, Chit and Anand, which means truth, knowledge and bliss. I'll explain these terms to you. Satchidananda Vigraha. Anadi Radhir Govinda. He doesn't have a beginning. He doesn't have an end. And Govinda. He is Govinda. What is the meaning of Govinda? Anybody knows? Anybody knows the meaning of Govinda? What is Go? Cow. Okay. And what is Inda? There are two meanings to the word go. Go means cows and go also means our senses. Eyes, ears, nose, lips, tongue and our skin. Okay. So these are our senses. Govinda, Inda means one who gives pleasure. So Govinda means that person who is giving pleasure to the cows and to the senses. Anadi Radhir Govinda, Sarva Karan Karanam, and he is the cause of all causes. So now, if we talk about our relationship with Krishna, we are saying we are part of Krishna and we will have similar qualities like Krishna. Quantitatively, we are different. So Krishna's qualities are Sat, Chit and Anand. What is Sat? What is Chit and what is Anand? Let's say if I clap like this, even those who may be dozing, they may also come, be attentive and look at me, right? Why? Why does this happen? Because we are made up of knowledge. So we are always hankering for knowledge. So whenever there is an opportunity, we will quickly try to absorb that knowledge. But in our conditioned state, in the current state, our knowledge is restricted. For example, I am wearing these specs, right? So my vision is restricted. If I remove them, I cannot see beyond 10 feet. Okay? So my knowledge is restricted, but I am made up of knowledge. Anand is bliss. I am made up of Anand, but because of my conditioning, because of my surroundings, my Anand is getting restricted. And what is Sat? Sat means eternity. None of us want to die. None of us want to grow old. We want to exist all the time. That quality is also coming from Krishna. Because we are part and parcel of Krishna, we are supposed to be eternal, we are supposed to be full of knowledge, we are supposed to be full of Anand, but all three things are restricted. So my question was, why do we hanker for happiness? Because we are made up of Anand and that's why we always want happiness. That is why we are always making plans to get more and more happiness in our own way. And then let's move ahead. Okay, so what do you see on this picture here? These pictures here. Do you think this person will be happy? This person will be happy or no, not happy? This person. Happy? Unhappy? Unhappy, right? Do you think this person will be happy? Unhappy. And same thing applies to this person also. One is poor, one is having amputated limbs, one person is again a poor. Now Krishna, he is Mamevamsho. He is saying he is our father. Then why are different results happening? Why is can a father or a mother be partial to us? What do you think? Is he alive? Is he not there? Is he powerful, not powerful? All of these statements can be topic for bigger discussions, each one of them, right? But we will try to come back to our topic today. How do we apply this knowledge practically in our day-to-day life? What is the knowledge of Gita that we can use in our day-to-day life? Now, this is reality of life. Our reality is somewhere in the middle. We may not be very poor, but we may not be ultra rich also. We may be having all our limbs, but we may not be that strong. And I don't want to become like that, but yeah. So we are somewhere in the middle, most of us. But all of us want to be ultra rich like those people. Because we relate that richness to our happiness. So my question now is, what is the reason for these differences? We are discussing about happiness and unhappiness, correct? So what is the reason? Expectations. Very nice, sir. Expectations. Anything else, do you think? Karma. Very nice. What else? Anything from the backbenchers?
Okay, so this is a court situation. See, the court, in the court, the judge is sitting and pronouncing judgments, right? Somebody is getting very rigorous punishments. Somebody is getting big compensations. What is the difference? What is the difference? Is he partial? No, he is not partial. This is very important, right? So we may choose to not believe this. Okay, we may choose to not believe this, but the result is in front of our eyes. When a judge in the court is pronouncing judgments, many times if you go into the court and you see the trial happening, there is a element of shock when the judgment is pronounced for the person who is convicted. That person may choose not to believe whatever judgment was given to that person. They may choose to ignore it. But if they choose to ignore it, can they get rid of that punishment? जैसे ऐसे बताते हैं कि खरगोश के सामने अगर कभी लोमड़ी आ जाए तो खरगोश क्या करता है? किसी को पता है? क्लोज द आईज, करेक्ट. वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके वो ब्लिस में, समाधि में चला जाता है. उसको लगता है कि अब तो मैं बच गया. बट क्या लगता है आपको? लोमड़ी क्या करती है उसके साथ में? खा जाती है उसको. एज सिंपल एज दैट. तो हम लोग कई बार एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, मानते नहीं हैं चीजों को, लेकिन रिजल्ट हमें दिखा रहे हैं. रिजल्ट दिखा रहे हैं कि अलग अलग हमारे साथ कुछ हो रहा है. तो दिस इज वन रीजन फॉर दैट अनहैप्पीनेस. जो मैं आपको साइकिल ऑफ लाइफ दिखा रहा था, उसमें सबकी एस्पिरेशंस हैं बहुत बड़ी बड़ी, बट क्योंकि हमने कुछ कुछ अलग अलग तरीके के काम किए हैं, हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो अब अगर जो भी इंटेलिजेंट है उसके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि क्या कोई तरीका है कि इस रिजल्ट को बदला जा सके. भाई हम पीछे तो जा नहीं सकते. अभी तक आप लोगों ने टाइम मशीन डिस्कवर नहीं करी है, राइट? एसजीटी यूनिवर्सिटी में टाइम मशीन होती तो पीछे चले जाते, पता लग जाता क्या खराब था, बदल के आ जाते वापस. तो टिल द टाइम यू डिस्कवर अ टाइम मशीन, क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या करेंगे? वेरी नाइस. प्रेजेंट कर्मा को अच्छा कर सकते हैं. तो व्हाट इज कर्मा? व्हाट इज कर्मा? कई सारे लोग मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं कि हम तो कर्म में बिलीव करते हैं. व्हाट इज कर्मा? वी हैव अ टाइम टिल व्हेन प्रभु? 12:15. Okay. Okay. Yeah. What is karma? Karma at the mental state. At that time, karma happens. If you're thinking also, that is also karma, you need to say. Okay. Okay. That is one. That is a good point. What else? हाँ, ये तो आप सोल्यूशन बता रहे हो कि हम अच्छे तरीके से करें. मैं पूछ रहा हूँ कि कर्म क्या है? व्हाट इज मीनिंग बाय जी? आउटकम. वो कर्म फल है. वो कर्म फल है. सिंपल. कर्मा मतलब एक्शन है. जैसे आप लोगों ने बताया, आपने एक बड़ा एक अलग न्यूआंस बताया कि भाई हम मन में भी जो कर रहे हैं उसका भी एक एक्शन बन जाता है. हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी हम आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग भी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हो ना. जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो या एजुकेटर्स हो, तो एक पढ़ा रहे हैं एक सेगमेंट और एक पढ़ रहे हैं, ये आपके कर्मा है, करेक्ट? लेकिन जो ब्रॉड टेम्पलेट जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, ये आपके पास एक्शन से आया है. तो दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्म और एक होता है प्रारब्ध. आप अभी जो कर रहे हो उससे आप अपने कर्म बना रहे हो, बट जिस सिचुएशन में आपको कर्म करने का मौका मिल रहा है वो आपके प्रारब्ध से आपको मिल रहा है. उस टेम्पलेट को आप बदल नहीं सकते, लेकिन उस टेम्पलेट में जैसे आपको एक ब्लैंक स्लाइड मिल जाए, उसमें आप जैसे मर्जी रंग भर सकते हो, जैसे मर्जी शेप बना सकते हो, बट उसी स्लाइड के दायरे में रहते हुए आपको काम करना पड़ेगा. दैट इज द लिमिटेशन.
तो हमारे जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमको अभी का टेम्पलेट मिल गया है सबको अलग अलग तरीके से। बट अभी हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करें और क्या ना करें। और यहीं पे सवाल आता है नॉलेज का, यहीं पे सवाल आता है ज्ञान का। जैसे मान लीजिए अभी आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं अपने किसी कंपनी में काम करता हूं, तो मुझे वहां पर अगर नौकरी करनी है तो मुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स ने जो चीजें बताई हैं, जो रूल्स बताए हैं, उनके अंदर रहते हुए काम करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग के लिए काम करना पड़ेगा। अगर मैं वैसा करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, हाइक्स मिलेंगी, है ना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बट अगर मैं उसके अगेंस्ट में काम करूंगा तो हो सकता है निकाल दें कंपनी से, या मुझे डिमोट कर दें, या मुझे सैलरी मेरी कम कर दें। इसी तरीके से वेदों के अंदर एक वाक्य आता है, एकोहम बहुश्याम। ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, एकोहम बहुश्याम। कृष्ण कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को एक श्लोक दिखाया था, ममय वामशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो कृष्ण कह रहे हैं एकोहम, मैं एक ही था, बहुश्याम, मैंने अपना विस्तार किया। क्यों किया विस्तार? अपने आनंद के विस्तार के लिए मैंने अपना विस्तार किया, अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। किस लिए किया था? कि मेरा आनंद मल्टीप्लाई हो जाए। क्यों हो जाएगा मल्टीप्लाई? क्योंकि क्वालिटेटिवली हम लोग सेम हैं। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति हो जिससे आप बड़ा प्रेम करते हैं, मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हों, दोनों से बहुत प्रेम करते हैं माता पिता, तो एक बच्चा आए तो प्रेम अच्छा लगेगा, दूसरा भी आए तो और ज्यादा प्रेम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं अपने आनंद का वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब ये जो जीव हम लोग जो हैं, जो भगवान के अंश हैं, अगर हम उस आनंद में भगवान का सहयोग नहीं करते हैं तब हम इस कर्म के साइकिल में, चक्कर में फंस जाते हैं। तब हमारे पास अलग अलग कार्मिक रिएक्शंस हमें आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस संसार में दुख पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और समझेंगे। ये कोई पढ़ेगा, कोई भी स्टूडेंट प्रेफरेबली कोई पढ़ना चाहे तो, छोटा सा एक श्लोक है, ये बड़ा जबरदस्त सीक्रेट है ना, ये समझने वाली चीज है। यहां पर इस श्लोक में ये 18 चैप्टर का वर्स है गीता का। गीता में 18 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये कंक्लूडिंग चैप्टर है। कंक्लूडिंग चैप्टर के अंदर कृष्णा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किसी भी काम के पीछे 5 कारण होते हैं। क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारणम च पृथक विधम, विविधा च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। द प्लेस ऑफ एक्शन, द बॉडी, द परफॉर्मर, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the super soul, these are the 5 factors of action. हम लोग, जैसे मैं बता रहा था कि जब हम यंग होते हैं या जो अभी आपकी एज में, आप सभी के एस्पिरेशंस बहुत बड़े बड़े हैं, राइट? तो आप लोग क्या कर सकते हो? इसमें से 4 चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, और अगर आपने वो भी नहीं किया तो फिर सक्सेस मिलना मुश्किल है। क्या 4 चीजें कर सकते हो? You have to engage your body properly. You have to, then the soul which is within, that has to also desire. हमारे सेंसेस को हमको यूज करना है, एंड हमारी चेष्टा, हमारे एंडीवर्स होने चाहिए, तब हम किसी काम को कर सकते हैं। बट इसके ऊपर भी 5वां कारण है दैवम। वो दैवम कैसे काम कर रहा है? वो दैवम हमें कर्म के रिएक्शंस के अनुसार हमारे को अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। आपने पूरा सब कुछ कर लिया, जैसे मैंने बताया अपनी सिचुएशन में कि मेरे से 10 टाइम्स ज्यादा इंटेलिजेंट लोग भी कर रहे थे प्रयास, वो नहीं क्लियर कर पाए। उन्होंने मेहनत भी करी, बट क्योंकि पुराना एक्शन उनको मिलना था, रिएक्शन उनको मिलना था, इसलिए वो अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाए। तो हमें ये 5 चीजों को ध्यान से समझना है, और उस दैवम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं ये समझना है। तो एक तो प्रॉब्लम हमारे पास हो गई कि हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, और पुराने एक्शंस को हम चेंज कर नहीं सकते, तो क्या करें? लेट्स कम टू दैट। ये मैंने यहां पर एक कोड लैंग्वेज लिखी है, DANK। ये संस्कृत का एक सिंपल सा चीज है जो पता नहीं आजकल आप लोगों को बताया जाता कि नहीं। D स्टैंड्स फॉर धर्म, A फॉर अर्थ, K फॉर काम, एंड M फॉर मोक्ष। क्लियर हो गया ना? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो भगवान
जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए चीजें बताते हैं, राय देते हैं, उसी प्रकार भगवान भी बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि देयर आर 4 पुरुषार्थ, 4 चीजें ऐसी हैं जो करने जैसी हैं, जो करनी चाहिए हमको। क्या है? हर किसी को आनंद चाहिए क्योंकि हम आनंद के बने हुए हैं। वो आनंद कैसे मिलेगा? तो क्या करना है? पहला काम करना है कि कुछ धर्म का काम करना है। एंड धर्म इज नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाय द वे। ये फेथ्स हैं। आज मैं हिंदू हूं, कल मैं मुसलमान बन सकता हूं, परसों मैं ईसाई बन सकता हूं। ठीक है, ये फेथ्स हैं, ये ऐसे हैं जो चेंज की जा सकते हैं। धर्म एक ऐसी चीज है जो हमसे इनसेपरेबल है। ठीक है, तो क्या है? जैसे पानी का क्या धर्म है? क्या चीज पानी में ऐसी है जिसको अगर पानी से अलग कर दिया जाए तो पानी पानी नहीं रहेगा? तो बता सकता है? हाँ जी, नहीं नहीं, पानी से अलग कर दिया जाए, तरलता, लिक्विडिटी। हाँ, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। आग का, फायर का क्या धर्म है? जलाना, रोशनी देना, है ना? अगर आग पानी में से लिक्विडिटी हटा देंगे तो वो वेपर बन जाएगा या आइस बन जाएगा, राइट? इसी तरीके से हमारा क्या धर्म है? क्या धर्म है हमारा? किसने बोला? आप तो डिस्क्वालीफाइड हैं, आप नहीं बोल सकते। हाँ, कोई? हमारा धर्म है सेवा, और सेवा प्रेम का लक्षण है। मैं फिर से बोलता हूं, ये जबरदस्त थ्योरम है। प्रेम हमारा धर्म है एक्चुअली। हम कब किसी ना किसी से हर समय हम प्रेम करते हैं। हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, हमारे घर पे जो कुत्ता होता है उससे प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने समाज से प्रेम करते हैं, है ना? और जिस भी लेवल पे हमारी कॉन्शियसनेस होती है उस लेवल पे हम उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा के द्वारा हम प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो ये प्रेम और ये सेवा किसकी होनी चाहिए, यही धर्म का विषय है। किसकी होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं? अल्टीमेट गोल क्या है? आनंद। तो सेवा कर कर, प्रेम कर कर हम आनंद ढूंढते रहते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको फिर से, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा प्रेम था इस चीज को लेकर, इस गोल पे प्रेम था कि अगर मैंने अच्छा डिग्री ले ली तो मुझे खुशी मिल जाएगी, तो उससे उस तरफ ध्यान था। फिर अच्छी जॉब मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, फिर फला 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 सारी जो बाकी की चीजें हैं एक के बाद एक, उन सभी चीजों में। और हर बार क्या था? हैप्पीनेस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आज मैं अच्छी जॉब को कर रहा हूं, अब मैं एक चीज और करूंगा ना तो मुझे खुशी मिल जाएगी। जब वहां पहुंचा, अगले स्टेप पे पहुंचा, तो एक चीज और करूंगा तो फिर खुशी मिल जाएगी। बट हैप्पीनेस इज ऑलवेज राउंड द कॉर्नर। हर समय ऐसा लगता है कि आगे भागती रहती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस प्रेम का विषय कौन है, उस प्रेम को किससे करना है, कैसे सेवा करनी है, हमें ये नहीं पता। हम अपने अपने तरीके से प्रेम और सेवा को में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान तरीका बता रहे हैं कि अगर आप धर्म को करोगे, धर्म मतलब धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। अगर उसको आप करोगे तो आप क्या होगा? फिर आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ क्या होता है? रिसोर्सेज, पैसा, वेल्थ, है ना? तो अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति होगी तो आप क्या कर पाओगे? काम, काम यानी हमारी डिजायर्स, हमारी डिजायर्स को हम पूरा कर पाएंगे, और उसके बाद हम मोक्ष, जो और भी ऊंचा आनंद है, उसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक चीज हो गई। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो कुछ पाना चाहते हैं, उनको नहीं मिल रहा, तो उनको क्या करना पड़ेगा ताकि उनको कुछ मिलना लग जाए। बट क्या आपको लगता है कि जिनके पास सब कुछ है वो खुश हैं? जो चीजें जो हमारे लाइफ गोल में जो दिखा रहा था मैं, जैसे अभी बिल गेट्स का डिवोर्स हो गया थोड़े समय पहले, है ना? एक मैं छोटा सा रील देख रहा था जिसमें लता मंगेशकर कह रही हैं एक इंटरव्यूअर को कि मैं ना नेक्स्ट लाइफ में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। कितने सारे भारत में लोग हैं जो लता मंगेशकर बनना चाहते हैं कि उनके जैसा वो बन जाए, लेकिन लता मंगेशकर खुद कह रही हैं कि आपको पता नहीं है कि लता मंगेशकर होने के कितने सारे नुकसान है ना? तो हम लोगों को ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो ये कि हमने कुछ गोल बनाया, हमें मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें अलग अलग कर्मों के अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास चॉइस है। एक टेम्पलेट मिला है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पिछली साइड में जो दिखाया था। अब आती है बात कि जिनके पास है वो खुश क्यों नहीं है। ठीक है,
सिंपल सी पिक्चर्स हैं, तो बताएगा हाथी खुश हो सकता है, पेड़ पे चढ़ने का कोशिश करे हाथी। आपके यूनिवर्सिटी में टेस्ट रखा जाए कि सब हाथियों को हम डॉक्टर बना देंगे अगर वो पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो। सर बताइए, हाथी पास हो सकता है इस एग्जाम में कभी भी? मछली सोचेगी कि मैं उड़ूंगी, मछली के लिए टेस्ट रखेंगे कि हम वो उड़ जाए अगर, तो फिर उसको हम डॉक्टर बनाएंगे या जो भी इंजीनियर जो भी आप लोग। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इनमें, इनके गोल्स में क्या प्रॉब्लम है? जिनके पास है सब कुछ जो हम डिजायर करते हैं उस लाइफ की साइकिल में, जिनके पास वो सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है, उसका कारण क्या है? कैन यू गेट एन आइडिया फ्रॉम हियर? उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हाँ जी, लालसा, कौन बोल रहे हैं? अच्छा सॉरी सर, हाँ लालसा, गलत डिजायर के पीछे भाग रहे हैं। आपने शब्द यूज किया गलत, कैसे पता लगेगा कि क्या गलत डिजायर है क्या सही डिजायर है सर? अनरियलिस्टिक डिजायर कैसे पता लगेगा? व्हाट इज रियलिस्टिक फॉर मी एंड व्हाट इज अनरियलिस्टिक फॉर मी? हाँ जी, व्हाट इज योर कैपेसिटी? Elephant has a big capacity, right? If capacity is the criteria, elephant has very huge capacity. You're getting there. थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक आप लोगों को, I want you to tell me the answer कि क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो भी वही कह रही है, कैपेसिटी, क्षमता। हम खुद को नहीं पहचान रहे हैं। पेड़ पे चढ़ना किसका काम है? बंदर का काम है। उड़ना हवा में किसका काम है? बर्ड का काम है। अगर फिश अपने आप को पंछी समझने लग जाए तो जिंदगी भर डिप्रेशन में रहेगी, है ना? हाथी भी जिंदगी भर, हाथी के अंदर बड़ी कैपेसिटी है, क्षमता बहुत है, अगर उसको उसका वाला काम दिया जाए, ही कैन एक्सेल इन हिज वर्क, ही कैन बी द बेस्ट, ही कैन गेट द बेस्ट इंक्रीमेंट, राइट? बट अगर हाथी को ये बोल दिया जाए कि भाई तेरा टेस्ट ही है कि तुझे बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ना है, he will always be in depression. That is the problem. So we discussed two types of problems. One is we desired something, we couldn't get it. The reason I explained to you why we couldn't get it. Second is, even if you get it, can you be happy by getting that thing? If you don't intelligently determine that what will give you happiness, you may end up wasting all your time. I meet so many people, and some of them are very well placed people also, and many of them have this realization in life. At the fag end of their life, they are saying कि हमने कुछ अचीव नहीं किया, materially they have achieved a lot, उन्होंने कोई अचीव नहीं किया। So the point I am trying to make here is कि हमारी पोजीशन क्या है? जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, है ना? मे बी आपको फिर से याद हो जाना चाहिए वाला श्लोक, मैं कई बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना? तो ये ममे अंशो कौन है? हु इज दैट अंश? कौन है वो अंश? हाँ, कौन है अंश? हम। कौन हम कौन है? हम कौन है? हु एम आई? आत्मा। बट क्या हम इस चीज को मानते हैं? कितने लोग सोचते हैं कि हम आत्मा हैं? व्हाट इज आत्मा? देखिए, जानने और मानने में फर्क है। आप सब एजुकेटर्स हैं, आप सब जानते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी आप बहुत सारी चीजें बोलते होंगे जो सब जानते होंगे, लेकिन उनको रियलाइज करना, अगर रियलाइज नहीं होगा तब तक हमारे एक्शंस उससे लिंक्ड नहीं होंगे। पता चलता है। कॉन्शियसनेस, एक आंसर आया, कॉन्शियसनेस। और कोई बताएगा? आत्मा। ओके, क्या दिखा रहा हूं मैं इस पिक्चर में? क्या कर रहा है आदमी? हम आत्मा अगर हैं, अब मैं इस चीज पे आ रहा हूं कि अगर हम आत्मा है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना? ये क्या कर रहा है ये आदमी? हाँ,
क्या कर रहा है? ये लगता है स्टूडेंट्स आपके यहाँ के सब डरते हैं टीचर से, बोल नहीं रहा है कोई कुछ भी। ये वो मैं अगर आपकी जगह होता, रॉ वे में कहूँ तो अपना सर खुजा रहा है और एक हाथ में वो, उसके हाथ में कुछ खाने की चीज है ना, है ना तो वो क्या कर रहा है, ये शरीर जो है इस व्यक्ति का बड़ा सा शरीर, इसके जो दो हाथ हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, खुजली मच रही है इसलिए खुजा रहे हैं, और खाने का मन कर रहा है इसलिए हाथ में प्लेट है, उससे कुछ खाना चाहता है। अब क्या ये आदमी अपने हाथों को सैलरी देगा अपना सर खुजाने के लिए और अपने पेट में खाना डालने के लिए? क्या कहते हो आप लोग, क्यों नहीं देगा सैलरी? अगर आप यहाँ पर जो भी हो, जो जॉब कर रहे हैं, वो कुछ भी काम करेंगे तो उसके लिए सैलरी मिलती है हमको, राइट? मुझे सैलरी मिलती है अपनी कंपनी में काम करने के लिए। सैलरी नहीं देंगे, बोलेंगे ऐसे ही करो, तो मैं नहीं करूंगा भाई। ये हाथ को सैलरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हाथ काम कर रहे हैं ना, कुछ दे रहा है, सर खुजा रहा है, मुंह में खाना डाल रहा है, क्यों नहीं सैलरी मिलनी चाहिए इसको? व्हाट इज द थियरम? समबडी सेड समथिंग जी। इफेक्टिव तरीके नहीं हाँ, very nice. So the arms are part of his body, and the arms are part of the body, and then they are getting satisfaction in serving the body. जब पेट में खाना जाता है तो मेरे हाथ को भी आनंद आता है, पैरों को भी आनंद आता है, पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। अगर मैं खाना मुंह को देता हूं, आइडियली देखा जाए, अगर द्वेष की भावना आ जाए, एनवियसनेस की भावना आ जाए, तो हाथ बोलेगा खाना तो सारा ये सारा पेट खा जाता है, मुंह खाता है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, आपसे मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, पेट को मैं खाऊंगा। खा सकता है हाथ खाना? नहीं खा सकता। ये इतना चिंतित है ये व्यक्ति इस समय, हाथ नहीं खा सकता खाना। पॉइंट है कि द पार्ट शुड सर्व द होल, तब उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर ये हाथ एक आर्टिफिशियल प्रयास करेगा खाना खाने का, तो दैट हैंड कैन नेवर बी हैप्पी, कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, एंड दैट इज वेयर द सीक्रेट लाइज। अगर हमें पहले तो हमें यही नहीं पता कि हम कहां से आए हैं, हम किसका अंश हैं, हमें यह पता लग गया कि हम भगवान के अंश हैं, तो फिर किसकी सेवा करनी चाहिए? किसकी सेवा करनी चाहिए? अगर हम भगवान के अंश हैं तो अंशों को आनंद कब मिलेगा? अगर हम इस आर्टिफिशियल पोजीशन में रहेंगे कि जहां पर ये हाथ खुद खाना खाने का प्रयास कर रहा है, तो क्या वो कभी खुश हो सकता है? उसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं और हम आनंद लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम कभी सफल हो सकते हैं? आप देखिए कि पिछले 200 सालों के अंदर हमारे जीवन में कंफर्ट कितना बढ़ गया है। बहुत कंफर्ट बढ़ गया ना, हर चीज के लिए बहुत कंफर्टेबल हो गई है लाइफ। बट क्या आपको लगता है कि लाइफ आनंदमय हो गई है? जो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स वाला स्लाइड आपको दिखाया था, वो सारी प्रॉब्लम्स वाकई में बढ़ रही हैं। पहले बहुत कम थी, आज बढ़ गई हैं प्रॉब्लम्स। तो कंफर्ट के कई सारे हमारे पास तरीके हैं, उसके बावजूद हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ रही हैं। वो क्यों बढ़ रही हैं प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में? क्योंकि हम ये पॉइंट मिस कर रहे हैं कि हमें जिसके हम पार्ट हैं उसको सर्व करना है। अब सवाल आता है कि उसको कैसे सर्व करेंगे? कैसे सर्व करेंगे? कोई बताना चाहेगा? क्या मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि भाई जितने एजुकेटर्स हैं अब से वो एजुकेशन छोड़ेंगे और कहीं पे जाके जंगल में जाकर भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे? जितने स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई छोड़ेंगे और सारे के सारे जाकर, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर आपको? ऐसा कहूंगा तो अगली बार बुलाओगे ही नहीं आप। हाँ जी, जय जी 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 जी, वेरी नाइस पॉइंट यू हैव मेड। सर आप कुछ कह रहे थे? सब पार्ट हाँ इस पार्ट की वजह से सेवा करते हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सर।
ओ वेरी नाइस, क्या बात है, आपने तो मेरा आगे की 2 स्लाइड छीन ली मेरे से। और कोई कुछ आंसर? दैट्स द परफेक्ट आंसर एक्चुअली, दैट्स द परफेक्ट आंसर। मैम शास्त्र में एक श्लोक है, धर्मः सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन तथा स्वयं न उत्पादयेत यदि रथिम श्रम एव ही केवलम। सिंपल संस्कृत है, धर्मः सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन तथा स्वयं। अगर धर्म का पालन करने से, विश्वक्सेन यानी स्वयं भगवान, उनके लिए अगर रति उत्पन्न नहीं हो रही, प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, तो फिर क्या है वो? श्रम एव ही केवलम। जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो क्यों ड्यूटीज हैं हमारी? किसने बनाई है ये ड्यूटीज? हम सब किसके हैं? जो आपने जैसे बताया कि पेरेंट्स हैं, गुरुज हैं, चिल्ड्रन हैं, वो सारे कहाँ, वो किससे सबसे पहले कनेक्टेड हैं? हमारे बच्चे बनने से पहले हमारे बच्चे किसके बच्चे हैं? उसी भगवान का अंश है ना। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो असली पेरेंट्स कौन है उनका? भगवान। लेकिन वही भगवान हमको रोज बता रहे हैं कि भाई आप इन फला, जैसे आप लोग जो एजुकेटर्स हैं, आपको ये रोल दिया गया कि इतने सारे स्टूडेंट्स की एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई, तो आप ट्रस्टी हैं इनके वेलबींग के लिए, बट यू डोंट ओन देम, you are trustees for them, you are teaching them, you are making them eligible to live a happy life in future। तो आपका ट्रस्टी वाला काम है, राइट? ये तो बहुत सिंपल, आप सब जानते ही हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ सब चीजें। तो हम सब ट्रस्टीज हैं। इसी तरीके से हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम सबके लिए ट्रस्टीज हैं। जब हम उनको सर्व करने की बात करते हैं, उस इक्वेशन में जब आप अपने स्टूडेंट्स को सर्व करते हो या आपके स्टूडेंट्स आपको सर्व करते हैं, उस इक्वेशन में अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पहला कनेक्शन कृष्णा से है और हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो फिर सारा का सारा क्या हो जाएगा? श्रम एव ही केवलम। नॉनसेंस है, कुछ फायदा नहीं है उसका। तो पॉइंट ये है, मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं क्विकली कंक्लूड कर रहा हूं, जल्दी से कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट ये था, हम सब भगवान के पार्ट हैं। एक को हम बहुत श्याम भगवान कह रहे हैं, मैंने अपना विस्तार किया आनंद के लिए, सबके आनंद के लिए, सबका आनंद वर्धन करने के लिए। लेकिन कुछ जीव, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें सहयोग नहीं करना चाहते। तो भगवान इज वेरी मर्सीफुल। जैसे साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा अपने घर में ऐसा हो सकता है जो बोले कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? वो तो उनके लिए कंसर्न होना छोड़ते नहीं है, वो क्या करते हैं? उस बच्चे के लिए भी व्यवस्था करते हैं। ठीक है भाई, तेरे को नहीं रहना मेरे साथ में, यू टेक दिस प्लेस, यू गो टू दिस हाउस, यू लिव देयर, बी हैप्पी। दैट इज व्हाट दे विल ब्लेस। इसी प्रकार भगवान भी हमारे पर, हम कोशिश कर सकते हैं भगवान से अलग रह के आनंद भोगने के लिए। हाथ कोशिश कर सकता है खाना खाने के लिए, लेकिन सफल नहीं होगा। तो क्या होगा? रियलाइज होगा एक दिन कि भाई, जैसे मैंने आपको जो साइकिल ऑफ लाइफ बताई, भगवान ने चाहा तो आप सभी लोग उस साइकिल में उन्नति पे जाएंगे, है ना। उन्नति पे जब पहुंचेंगे तो उसके बाद भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि सब कुछ चीजें मिल गई मुझे, ये सारा कुछ मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, बट फिर भी समथिंग इज मिसिंग। इसको समझने के लिए फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड इट, इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट यू हैव टू डू इट एज अ ड्यूटी। एक बार पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू टेक आउट ट्रेजर्स फ्रॉम दैट गीता। इट विल गाइड यू इन ऑल वॉक्स ऑफ योर लाइफ। हर डिसीजन में आपको वो हेल्प करेगी। गीता का ज्ञान सर्वोपरि है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े ऑथर्स ने ग्लोरीफाई किया है, बड़े बड़े लीडर्स ने ग्लोरीफाई किया है, और वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को हम गीता के अंदर से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, इस नॉलेज को आपको समझना होगा। हमको, अभी मैं इस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, इट इज अनदर बिग टॉपिक, तो मैं यहीं पे इसको कंक्लूड करने के लिए, माय फाइनल मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज कि प्लीज ट्राई टू लिंक एवरीथिंग विद कृष्णा, अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड एवरी एक्टिविटी कैन बी लिंक्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई हैड टू परचेज अ हाउस, आई मीन एवरीबडी इज लिविंग इन अ हाउस, है ना, हर किसी का घर तो होता ही है। वो घर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हम अपने लिए सुंदर सा घर बनाएंगे और उसमें हम अच्छे से रहेंगे, और हम ये भी सोच सकते हैं कि हम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे और उसमें हम रहेंगे। हर कोई व्यक्ति खाना रोज खाता है, तो घर में जब खाना बनता है तो ये सोचा जा सकता है कि ये खाना मैं अपने प्लेजर के लिए बना रहा हूँ, और ये भी सोचा जा सकता है कि ये जो मैं खाना बना रहा हूँ
ये मैं भगवान को ऑफर करूंगा और उनका प्रसाद दूंगा। सेम एक्टिविटी है, बस फर्क क्या है, चेतना का फर्क है, कॉन्शियसनेस का फर्क है। एक चेतना ऐसी है जो हमें बांधेगी, हमारे जो आगे के टेम्पलेट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगी, और एक चेतना ऐसी है जो हमें उस जर्नी पर आगे ले जाएगी। हमारे को जो इस संसार में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस संसार में जो फेलियर्स मिल रहे हैं, उससे हमें ऊपर उठाएगी। तो ये अगर आप कर पाते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी जी कुछ बुक्स हैं यहाँ पर। उदित प्रभु, डू वी हैव बुक्स है? नीचे कुछ स्टॉल्स हैं हमारे, तो वहां पर गीता है हमारे पास, जिसमें 700 श्लोक वाली बहुत सिंपल गीता है, और एक कृष्णा की बुक है जिसमें कृष्णा के सारे पास टाइम्स हैं अलॉन्ग विद द फिलॉसफी एज टू व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड। इस तरीके की बहुत अच्छी सी कुछ किताबें हैं हमारे पास। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू टेक दोज बुक्स एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम दोज बुक्स। अगर आज से आपने ये नियम बना लिया अपने लाइफ में कि मैं रोज 10 मिनट इन्वेस्ट करूंगा अपने धर्म को समझने के लिए, अपनी गीता को जानने के लिए, you will bless me later on. This is what I can say. We are at time now. I have lots to share, but limited capacity. I am not that intelligent. आप लोग सब बहुत बड़े-बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो whatever I could say based on my guru's blessings, I was trying to share. But किसी का कोई प्रश्न है तो हम 10-15 मिनट प्रश्न पूछिए। Yes, ma'am, please. मैम का प्रश्न है कि जैसे जो हमारे अलग-अलग रोल्स हैं, हम लोग पेरेंट्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, तो अलग-अलग रोल्स हैं हमारे, अलग-अलग ड्यूटीज हैं। अगर हम उनको पूरा कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है हमारे को आगे बेटर डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए, या हमें कुछ रिचुअल्स भी करने पड़ेंगे, जैसे व्रत करना या इस तरीके की चीजें? तो शास्त्र की एक वाणी है, शास्त्र कहता है, कृतयत् ध्यायते विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे मैं आई यूज्ड टू बी अ मार्केटिंग कंट्रोलर फॉर नोकिया। वी यूज्ड टू हैव अ ह्यूज मार्केटिंग बजट। नोकिया वाज द बेस्ट ब्रांड एट दैट टाइम। तो हमारा मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेरा कस्टमर मेरे पास बहुत आसानी से आना चाहिए। इट शुड बी वेरी इजी फॉर द कस्टमर टू फाइंड मी, टू नो मी, टू रीच मी। मार्केटिंग फनल होता है पूरा, है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? वो उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, है ना? तो वो कैसा रास्ता बताएंगे बच्चों को उनके पास आने के लिए? बहुत डिफिकल्ट रास्ता बनाएंगे या इजी रास्ता बताएंगे? आप क्या बोलते हो? इजी बनाएंगे, राइट? तो कृष्णा इज सेइंग, कृष्णा इज ऑफरिंग डिफरेंट मेथड्स फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस। जब सतयुग होता था, जहां पर लोगों की आयु बहुत ऊंची होती थी, बड़ी होती थी, तो वहां पे तपस्या करने का नियम था। अगर आज मैं आपको बोलूं ना कि 2 मिनट के लिए बिल्कुल हिलना नहीं, एकदम बैठ जाओ सीधा, कोई नहीं कर पाएगा, मुश्किल है बहुत। लोग हजारों साल तपस्या किया करते थे। तो यह ध्यायते विष्णु त्रेतायाम युग मचे। त्रेता युग जो भगवान राम का युग था, उसमें लोग यज्ञ किया करते थे। ऐसे पुरोहित होते थे कि मुंह से जब मंत्र बोलते थे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, शुद्ध समिधा मिलती थी, शुद्ध दूध दही होता था भगवान को ऑफर करने के लिए यज्ञ में। आज की डेट में तो शुद्ध दूध पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, कैसे करेंगे यज्ञ? और कई कई सौ सालों तक यज्ञ चलता था, राजा लोग यज्ञ करते थे। हमारे पास नॉर्मल आदमी के पास रिसोर्सेज नहीं है यज्ञ करने के लिए, राजा करते थे, उसमें पूरा देश पार्टिसिपेट करता था। द्वापर युग में अर्चना होती थी। आप साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां पर आपको बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे जो कि द्वापर युग के मंदिर हैं, जिन पे बहुत पूरी इलेबोरेट पूजा होती थी, वर्शिप होती थी, राइट? क्योंकि ये सारी प्रोसेसेस उन एजेस के लिए थी जिन एजेस में लोग ये करने के लिए सक्षमता थी उनके पास। बट कलयुग के लोग कैसे हैं? प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्याशी उपद्रुता। कैसे लोग होंगे कलयुग के? प्रायेण अल्पायु होंगे, कम उम्र वाले होंगे। मंद सुमंद मत्यो, मंद यानी आलसी होंगे, स्पिरिचुअल एंडीवर के लिए आलसी होंगे। सुमंद मत्यो, बुद्धि भी कम होगी। मेरे फादर मुंह जबानी डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डिविजन कर लेते हैं। मैं सीए होते हुए भी मुझे मतलब कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है हर छोटे से कैलकुलेशन के लिए। हमारी बुद्धि कम होती जा रही है ना? मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्याश। मंद भाग्याश मतलब क्या है? आजकल फैमिलीज साथ में नहीं रह पा रही हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, बच्चों को माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, है ना? थोड़ा सा अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ रही है, 12-12 घंटे नौकरी करनी पड़ रही है पैसा कमाने के लिए। तो मंद भाग्याश, हमारे भाग्य भी मंद है। मंद भाग्याश उपद्रुता, गुड़गांव में बहुत होता है, रोड रेज होती है ना, किसी ने किसी को ओवरटेक कर लिया, उससे खून खराब हो जाता है होता है ना? तो क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों में झगड़ा, छोटा सा किसी ने कुछ कह दिया, कुछ सुन लिया तो उस पर झगड़ा शुरू हो जाता है।
तो ऐसे कलयुग के जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, उनके लिए हजारों साल तपस्या करना, कई सौ साल यज्ञ करना और अर्चना करना पॉसिबल नहीं है। टाइम नहीं है, लोगों के पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, अर्चना कहां से करेंगे, है ना। तो क्या तरीका बताया है, कलयुग के लिए जो तरीका बताया है वो है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। जैसे मान लीजिए सर का नाम विजय है, जिन्होंने थैंकफुली ऑर्गेनाइज किया, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। विजय नाम है, राइट। अब विजय सर के घर पे कोई विजय बोलेगा तो वहां पर वो नहीं है, ठीक, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनके नाम में और इनके फॉर्म में डुअलिटी है। हम सभी के साथ ऐसा है, लेकिन कृष्णा जो है वो एब्सोल्यूट है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो अपनी पूरी पोटेंसी के साथ अपने नाम में प्रकट हो जाते हैं, अपने नाम में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की सारी पोटेंसी हमें अवेलेबल हो जाती है। जैसे जब हाथ गंदा होता है और हम साबुन को हाथ लगाते हैं तो साबुन गंदा होता है या हाथ साफ होता है? हाथ साफ होता है, राइट। तो जब हम कृष्ण को नाम लेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? कृष्ण परम पवित्र हैं, तो क्या होगा हमारा? हम प्यूरिफाई हो जाएंगे। प्यूरिफिकेशन क्या होगा कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है कि मैं हाथ को खाना खिलाऊंगा, उस कॉन्शियसनेस से हमको डिलीवरेंस होगा। तो हरेर नाम, कौन सा नाम लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नामनाम कलि कल्मष नाशनम नातः पर तरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कलि संतरण उपनिषद के अंदर, ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इससे उत्तम कलयुग के लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसको चैंट करना चाहिए। अगर इसको आप चैंट करेंगे, हमारे कुछ बेसिक नियम होते हैं, जैसे हर सभ्य समाज के कुछ नियम होते हैं, वैसे हमारे कुछ नियम होते हैं, उनको हमें पालन करना चाहिए, जो कि एक बड़ी डिटेल है। सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट टू लॉन्ग आंसर टू ये शॉर्ट क्वेश्चन कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, उससे सब चीजें पूरी हो जाएंगी। मिलियंस ऑफ जीरो हो, उनके आगे एक वन लग जाएगा तो इट विल मेक इट वेरी ओके। डू वी हैव टाइम फॉर मोर क्वेश्चंस और? यस सर। जी। In Bhagavad Gita, when the battle is on, so Arjun says, "Hey Krishna, hey Prabhu, I think lots of suffer of these problems like religion, ethics, बहुत सारी और भी चीजें थी." So Krishna said, "आवृतम ज्ञान मेतने ज्ञानिनो निर्वाणया काम रूपेण कौतन्य दुष्टेन रूपेण च।" कि आवृत ज्ञान मेतने, जो आप काम आवृत कर लेता है, कवर कर ले, ज्ञानिनो निर्वाणया, जो आपके ज्ञान का दुश्मन है, काम रूपेण कौतन्य, जो काम से आता है, दुष्टेन रूपेण से, जो कभी ना मिटने वाली आग होती है। जी। तो लाइक काम जो है हमारा, वो लाइक लस्ट होता है। अब लस्ट से लोग एक सैक्सुअल चीजों पे ले जाते हैं, बट लस्ट डिजायर होता है, डिजायर होता है। every desire which is opposite of goal, like कि even I am a student, तो मेरा गोल, मेरा एक ही होना चाहिए कि मुझे एक स्कोर अच्छा करना है और अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं उसको एक कार का ड्रीम करूंगा या उसको और कोई डिजायर लेके आऊंगा, तो वो मेरे लिए नष्ट होगा। तो इसी क्वेश्चन को रेज करते हुए आप हमारे बच्चों को ये बताइए कि कैसे इस नष्ट से बाहर निकला है और कैसे हम लोग इससे बाहर निकलें। नाइस क्वेश्चन प्रभु। पहली बात तो एक हमारे पास बहुत सुंदर बुक है, नीचे आप जब स्टॉल पे जाओगे तो यू कैन गेट दैट बुक। कुछ कॉपीज हैं हमारे पास, जो कि लस्ट, सिर्फ सेक्सुअल लस्ट नहीं, कोई भी डिजायर्स को कंट्रोल करने के बारे में बताती है। इसका लॉजिकल रीजन है, देखिए जितने भी ग्रेट लोग हैं ना, अगेन मार्केटिंग की बात कर सकते हैं, हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, राइट। जैसे आजकल YouTube पे और Facebook पे और Instagram पे रील्स आती हैं, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दैट। उंगलियों को ऐसे चलने की आदत पड़ गई है, थोड़े दिनों बाद हाथ ऐसे चलने लग जाएगा, रुकेगा नहीं, करेक्ट, ऐसे हो जाएगा। तो आप ये देखो, अगर आप उसमें से भी कुछ सीखना चाहते हो तो आप देखो कि जो उन रील्स को बना रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कितनी जान डाल रहे हैं अपने काम को करने के लिए। वो जब उस काम को करते हैं तो उनको कोई खुशी, उनको उतना एंटरटेनमेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आजकल वो जो मूवी छावा मूवी बहुत चल रही है ना,
तो आप देखिए कि उसके बारे में कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि उसने कितनी मेहनत करी विकी कौशल ने उस रोल को प्ले करने के लिए। तो उस मेहनत में जब वो कर रहा था वो मेहनत, तो उसको कितना मजा आ रहा होगा, आप सोचिए कितना मजा आ रहा होगा उसको। ही वॉज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव हिज गोल, एंड डिड ही मीट हिज गोल? और हम लोग कंज्यूमर्स हैं उसके कंटेंट के। हम क्या कर रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनको देखते हुए, उनको जो भी रील्स में आ रहे हैं वो देख रहे हैं और उससे अपनी डिजायर्स को बढ़ा रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं और हमारा जो गोल है उसमें जो मेहनत करनी चाहिए हम उसको बिल्कुल भूल जा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, इसी गीता के सेकंड चैप्टर के 2.672868 में भगवान कह रहे हैं, ध्यायते विषयाम हिंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोध विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कोई भी मैनेजमेंट का फॉर्मूला इससे बेटर नहीं हो सकता। भगवान ने इतना सुंदर सूत्र दे दिया है, फॉर्मूला है ये। क्या है? ध्यायते विषयाम पुंसा। विषय, विषय यानी हमारी जो सेंसेस हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनका ध्यान करेंगे, ध्यायते विषय, जब आप YouTube पे देखोगे कि ये फला व्यक्ति इतने सुंदर मकान में रह रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी में ये चल रहा है, तो आपके अंदर क्या आएगा? अटैचमेंट आ जाएगा उस चीज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस लड़की के प्रति या लड़के के प्रति या गाड़ी के प्रति, वो अटैचमेंट आ जाएगा आपके हृदय में। ध्यायते विषयाम पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः। और जैसे ही अटैचमेंट आएगा फिर क्या होगा? डिजायर्स उत्पन्न होने लग जाएंगे कि मैं इसको कैसे पाऊं, कैसे प्राप्त करूं। संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। डिजायर जब पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, उससे इल्यूजन क्रिएट होती है। जब क्रोध में आ जाते हैं ना, आप देखते हैं ना, क्रोध में जब रोड रेज की मैं बात कर रहा था, अगर किसी ने किसी को ओवरटेक किया तो इतना बड़ा क्राइम, आपके हिसाब से क्या चीज आपके लिए ठीक है और वही चीज हमें करनी चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज बी अंडर गाइडेंस, इट शुड नॉट बी जस्ट अवर ब्लाइंड डिजायर। ठीक है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट मैम। Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्ण। So there was a time like during COVID, सब भी परेशान थे, मैं भी एक टाइम था बहुत डिप्रेशन में थी। तो मेरी सिस्टर आई मुझे, she is like associated with ISKCON कृष्णा कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने चैंट हरे कृष्णा महामंत्र मैंने स्टार्ट भी किया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। वो मैं तब से कंटिन्यू कर रही हूँ। Very nice. सर मेरे को आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक समझ में नहीं आता। मैं जब भी चैंट करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, 1 or 2 माला होंगी, बट मैं सिर्फ माउथ से चैंट करती हूँ। सर मेरा दिमाग कहीं जाता है, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। सेकेंडली दीदी ने मुझे ये बोला कि तेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भगवत गीता में है, यू स्टार्ट रीडिंग दैट। वेरी नाइस। तो मैंने स्टार्ट सिर्फ 1 श्लोक से किया कि मैं बहुत मिनिमल से करूँ, बट सर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैंने 10-15 डेज किया, मैं सिर्फ पढ़ती थी, सर समझ कुछ नहीं आता था। आई थॉट कि वो शायद हिंदी में है तो मैंने इंग्लिश वाली भी ले ली, पर नहीं आया समझ। पढ़ती हूँ पर समझ नहीं आता, तो सर हम क्या करें? वेरी नाइस क्वेश्चन। पहली चीज, आपको कितने साल हो गए माला करते हुए? कोविड के टाइम 3-4 साल से कर रही हैं आप, है ना? देखिए हमारे अनंत कोटि, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो मेन्यू कार्ड होता है, उसमें हम चॉइस करते हैं कि हमें क्या खाना है, अलग अलग चीज़ों को हम अपनी पसंद से पसंद करते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमें 84 लाख का मेन्यू कार्ड दे रखा है। 84 लाख पीसेज ऑफ लाइफ wherein you can go and fulfill your different desires। तो उतनी बारी अलग अलग बॉडीज में जाकर अलग अलग डिजायर्स को हम एंजॉय कर चुके हैं। और अभी हम नहीं, कितने साल, करोड़ों अरबों जन्मों तक, सालों तक हमने किया है, और अभी सडनली हमें किसी भक्त की, जैसे आपकी दीदी की कृपा से आपको ये रास्ता मिल गया। तो वी शुड बी हैविंग सम पेशेंस कि ये काम करेगा फॉर्मूला। हमारी कंडीशनिंग इतनी ज्यादा है कि वो धीरे धीरे हम पे असर करेगा। जैसे वो बोलते हैं ना कि तो 100 बार जब पत्थर पे हथौड़ा पड़ता है तो 100वीं बार में टूट जाता है, लेकिन वो अंदर हर बार टूट रहा होता है। इसी प्रकार से हम हर बार प्यूरिफाई हो रहे हैं। हर बार आप नाम ले रही हैं, वो आप प्यूरिफिकेशन आपका हो रहा है, वो दिखेगा, थोड़े समय बाद दिखने लगेगा। कोई बात नहीं। हाँ, मैं उसका सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ कि
कि जब लोग गीता लेते हैं तो वो सोचते हैं कि बड़े एक्साइटेड होते हैं, आजकल लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट है कि हम गीता पढ़ेंगे, है ना, तो लेके जाते हैं, सोचते हैं आज ही मैं पढ़ के गीता में पंडित बनूंगा, कुछ समझ नहीं आता और फिर हमेशा के लिए उसको साइड में रख देते हैं। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, जैसे आपने बनाया था 1 श्लोक 2 श्लोक 4 श्लोक, एक बार आप पूरा उसको पढ़ लीजिए। आपने 15 दिन में छोड़ दिया, एक श्लोक पढ़ के, यानी 15 श्लोक पढ़े, और आई बिलीव आपने पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, अभी तो आप दूसरे पे गए ही नहीं है, दूसरे पे जाएंगे तो और कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। तो आप प्लीज अगर 1 श्लोक पढ़ेंगी तो 2 साल लगेंगे आपको एक बार पढ़ने में, उसको पूरा पढ़ लीजिए, और हो सके तो 4 श्लोक पढ़िए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 4 श्लोक रोज पढ़िए, 6 महीने में एक बार पढ़ लीजिए। धीरे धीरे जब आप आगे जाएंगी आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज कर पाएंगे। गीता में हर चीज साइंटिफिक है, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, कम से कम 8-9 बार पढ़ चुका हूँ, और बहुत सारी साइंस है उसके अंदर जो कि हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा गीता अपने आप को रिवील करेगी, बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, राइट। तो गीता विल स्टार्ट रिवीलिंग इटसेल्फ टू यू लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा सा सबमिसिवली प्रे करके करिए। एक बार जब पढ़ लेंगे, सेकंड टाइम व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट, definitely you will be able to understand it, you will be able to apply it, and you will get treasures out of it. I'm telling you, treasures out of it. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सॉन्ग है, इट इज अ सॉन्ग ऑफ गॉड, इट्स अ सॉन्ग। हाँ। तो उस तरह से उसको अगर पढ़ा जाए जी, तो आई थिंक वो बहुत इजीली जो फ्लो बन जाता है। एब्सोल्युटली। हाँ हाँ Everyone, thank you. सर, मैंने सुना है मेरे कर्मों का फल, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं मुझे अच्छा फल मिलेगा, मेरे कर्म बुरे हैं मुझे बुरा फल मिलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, मेरे कर्म ऐसे कि ये लोग 3 बार क्लैप कर चुके हैं, बोले जाओ। करेंगे, मेरा क्वेश्चन सर, सॉरी, मेरे हाथ में कोई दोष नहीं है। एक छोटा है, बहुत बार हमारी इंटेंशन सही होती है, एक्शन गलत होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, किल्ड ऑलमोस्ट अराउंड 12-13 पाकिस्तानी प्लेयर। पापा आज भी कहते हैं कि यार मुझे क्या मिलेगा मरने के बाद, मैंने तो इतने लोग मारे हैं। तो वो कहते हैं मेरे तो कर्म ही पूरे, फल क्या मिलेगा मुझे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, his intentions was pure because he wanted to save his country, but उनके actions was wrong, मतलब according to him। तो सर, being a defense personnel, कई बार मुझे ऐसा लगता है because we got the order from the higher authorities, we need to do it, but that those actions are not justifiable, na? They are the human beings. Can I take 5 minutes to answer this point? This is a very important point. Okay. Sorry, students. You'll have to bear me for 5 more minutes. This is a very important point you have made. Have you heard about Nuremberg trials? You've heard about Nuremberg trials, right? That's a very important point. First of all, अर्जुन का क्या प्रपोजल था कृष्णा को when he was giving all of his arguments कि ये सब प्रॉब्लम्स होंगे, नुकसान होंगे, तो he wanted, because he had already stayed in the forest for 13 years, his proposal was कि I can easily go to the forest, go back to the forest, beg, and I can survive. That was his thinking. But Krishna said no, you have to fight this war. And Krishna said कि कोई भी अगर आप यहाँ से भाग के जाओगे ना, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि आपने इन पे दया करके भाग गए, लोग आपको भगोड़ा बोलेंगे और आपको बुरा करेंगे। लेकिन अगर आप वॉर जीत में लड़ते हो, तो अगर जीत गए तो पूरे पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और अगर मारे गए तो आपको उच्च लोक मिलेंगे। तो पहली बात, जो डिफेंस फोर्सेस में हैं, जो देश के लिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए कर रहे हैं काम को, और अपने धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, भगवान की रक्षा के लिए कर रहे हैं, उनको वही रिजल्ट मिलता है, भले वो जीते या हारे, जो अर्जुन को भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। तो उनको ये ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए इस तरीके का, क्योंकि he has done it for the country, to save the religion of this country, to save this message of the country, right? ये बात हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ, ये बात हम भारत के लिए बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये पिवट है, भारत पिवट है, जहाँ से ये धार्मिक मैसेज पूरे विश्व में ब्रॉडकास्ट होता है, जिससे कि सारे विश्व को ये मैसेज मिले कि संसार में हम क्यों आए हैं और यहाँ से क्या पर्पज है। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू बी लाइक एनिमल्स। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरनाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभि नरनाम। तो स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए नहीं आए, ये तो एनिमल्स करते हैं सारा काम, बट ओनली इंडिया, ओनली भारत
can give this message that the dharma is the differentiator, and that's what needs to be followed by all who are in human bodies, at least. That is one point. But as you know about Nuremberg trials, how many of you know about Nuremberg trials? Okay, few people know. In summary, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए और उन सारे लोगों को उनका ट्रायल हुआ जिन्होंने बहुत एट्रॉसिटीज करी थी जूस के ऊपर। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप लोगों को आपने ऐसे कैसे किया, आपने क्यों किसी इंजीनियर को मारा, किसी डॉक्टर को मारा, किसी फार्मर को मारा, सिर्फ जू है ऐसे मार दिया आपने, क्यों किया ऐसा आपने? तो उन्होंने बोला कि हमको तो ऑर्डर्स मिले थे, वी वर वर्किंग फॉर हायर ऑर्डर्स, राइट, सो दैट्स व्हाई वी डिड इट। So no, they were all punished. These are recorded as Nuremberg trials. You can search and find these. तो उनको पनिशमेंट दिया गया कि you should have used your common sense there कि अगर ये गलत ऑर्डर आपको मिल रहा है कि आप निर्दोष लोगों को मारोगे तो वो आपको नहीं करना चाहिए था। So we have to, like Arjun was contemplating all the time कि what is right, what is wrong. That's why the Gita happened, right? Because he was sincerely thinking कि this is wrong. Then Krishna told him, no, this is not wrong. You have to do it for me, not for yourself. Similarly, we have to fight the war for the protection of dharma. हम लोग अहिंसा जो बोलते हैं ना, अहिंसा, तो अहिंसा इज माइंडफुल हिंसा। जब अगर अपनी रक्षा करनी है, अपने समाज की रक्षा करनी है, तो वी शुड टेक वेपन इन अवर हैंड। बट अदरवाइज हम, जैसे हम किसी को भी नहीं मारते किसी को, बट अगर कोई मारेगा, अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो फॉर अवर सेल्फ डिफेंस एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ लार्जर गुड वी शुड टेक वेपन इन अवर हैंड, राइट? दैट्स द मैसेज ऑफ गीता। क्लियर? ओके, थैंक यू। निवेदन है, यहाँ पर जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर बच्चे को वो बुक्स लेनी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। श्रील प्रभुपाद, जिनको मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया को यही है कि उन्होंने एज इट इज शास्त्रों को लिखा है ताकि हमारे जैसे सारे लोग उसका लाभ ले सकें। तो प्लीज आप उनको जरूर लीजिए। जो बातें मैंने बताई हैं सब उन्हीं की बातों को मैंने रिपीट किया है, तो आपको ये डिटेल में सब चीज मिलेंगी। तो प्लीज बुक्स जरूर लीजिएगा और हर चीज को कृष्णा से कनेक्ट करके करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।